Yeah, good evening, everyone. I would like to welcome today's meeting to every one of you who is present here. It's been a long journey of trying to really get a space for each one of us to have housing, and we all know our effort will not go in vain because it's the effort of all of us together. I welcome all of you today for our webinar meeting. We all know that it's been we all have been waiting eagerly for this, and this is also a much waited plan. So therefore, to cut a very long story short, this is from Alumni Connect. A very warm greetings to all of you, and we all know about. Sahin Bhai has shared about the campus. It is a residential project for us who are ex-Genuites in L Zone in Chawla, Dwarka Extension. And there is also a proposed, it is just on the vicinity of the UER, which is the proposed third ring road, which will connect Narela, Rohini, Dwarka Extension, Vasant Kunj and Faridabad. Just as we have the outer ring road, this is supposed to be on the very close. We have visited there, and whoever have seen, yeah, this is part of the UER2. Yes, Neeraj sir, you have rightly corrected me. This is part of the UER2, and this is just 4.7 kilometer from Diplomatic Enclave and 5.1 kilometer from the DDA Sports Complex, and very close by with the golf course, and just 15 kilometer from Indira Gandhi International Airport. The project is planned in 5 acres, and it can also go up to 10 acres depending upon how much confirmed members we have, because as we all know, this is a part of the project, a project which is from where we are. It's like a cooperative project, and it is based in 41 sector in the L zone in the proposed. And as we all know, the land pooling policy, it is a much awaited land pooling policy which will be coming very soon. I have just heard about from inside sources that this is going to happen very soon. So I welcome today to all of you for our webinar. And before I go ahead, I would like to invite Hari Krishna ji to give us, who is a legal consultant, to speak about the land pooling for the L zone. Myself, Hari Krishna ji is speaking. I belong to as awareness of the land pooling policy introduced in 2013. Presidential notification issued by Delhi Urban Development Ministry of for development area. And after that, 28th January 2019, the central government, Ministry of Urban Development, issued a notification for the area about all the Gram Sabha area next to central government. Central government under Section 22 of Delhi Development. Under Section 22 of Delhi Development Act 1957, the central government, with immediate effect, the area of villages which have invested in the central government, urbanized of the village, certified school of the disposal of Delhi Development Authority for the purpose of the development and maintenance of the said area. Ma'am, after that, window is open in 2nd February 2019. Some farmers already put the land in sector 14, about 60%. 59.70%. Current ratio is 59.70%. Yeah. And 70% land is required as per the policy. 70% requires land after consent of the farmers. Then sector will be open. They issue the formation of the consortium. 5 acre यानी 5 acre जमीन will be treated as G development entity. यानी 5 एकड़ का एक डी होगा, वो कंसोर्शियम के साथ एग्रीमेंट करेगा और उसके बाद उसको 60% लैंड जो है रिटर्न होगी, 53% फॉर रेजिडेंशियल, 5% फॉर कमर्शियल एंड 2% फॉर पीएसपी पब्लिक यूटिलाइजेशन. तो इसके बाद कंसोर्शियम विल स्टार्ट द वर्क आफ्टर नोटिफिकेशन
and that consortium will issue the license by DDA after agreement. यानी कंसोर्शियम जो है उसके साथ एग्रीमेंट करेगा दोबारा से साइन टाइप DDA. PDC yet to be decided. Now present as proposed to crore per acre. 2 CR per acre. यानी 2 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से लगाया हुआ सब, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो चेंज हो जाए, कम हो जाए ज्यादा. इसके बाद जो भी सोसाइटीज है वो अपना जैसे कंसोर्शियम काम करेगा वो उनकी सहमति से करेगा, डीई की सहमति से. सपोज आपकी सोसाइटी 5 एकड़ परचेज की है तो डीई कहलाएगी डेवलपमेंट एंटिटी. उसको जो है उसका 60% उसको मिल जाएगा, उसमें 5% कमर्शियल होगा, बाकी रेजिडेंशियल और 2% पीएसपी. 53 plus 9. रिसेंटली इन 25 मई 2020 को एक अमेंडमेंट किया है. अभी 5000 स्क्वायर मीटर द सोसाइटी कैन सेल द प्लॉट 100 मीटर to 100 मीटर 300 मीटर. यानी 100 मीटर का 200 मीटर का 300 मीटर का वो उसमें प्लॉट भी बना सकते, मतलब डेवलप करके बेच सकता है. पहले ये प्रोविजन नहीं था साहब. अभी और इससे ज्यादा ये है कि जो भी काम हो रहा है अभी एक विकास अधिनियम में संशोधन ला दिया गवर्नमेंट, ताकि इसको और सरल बना दिया जाए, ताकि लोग और एक्टिव हो. उसके लिए इन्होंने एक जोनल प्लान बनाया है. जोनल प्लान जो है इसमें इन्होंने सेक्टर नजदीक चले गए 17-18 के करीब, जैसे सेक्टर 40, सेक्टर 14 और सेक्टर 3 इन एल जोन. टोटल सेक्टर इन एल जोन ओनली 41 और दिल्ली इन 109 सेक्टर, सब इन पी जोन, P2, एन जोन. तो उनमें जो 3 जोन का उधर का जो छोटे सेक्टर है उनको कंबाइन करके इन्होंने ABC बनाया हुआ है. कुछ सेक्टरों में इन्होंने नोटिस कंसोर्शियम बनाने के नोटिस दे दी. डिफिकल्टी, माइनर डिफिकल्टी ये है सर, द लैंड जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए. जो पूल की गई है जमीन वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, एक ही सेक्टर में होनी चाहिए. ये उन्होंने उसको जो है हटाने के लिए प्रोविजन कर दिया है 70%. सपोज लो आपकी 5 एकड़ जमीन है, उसके अंदर 5 आपके टाइटल है जिसके नाम 4% है, 3 ने पूल के कंसेंट दे दिया, 1 ने नहीं दिया. उसको मैंडेटरी करने के लिए इन्होंने अभी प्रपोजल रखा है, वो चल रहा है अभी बातचीत मंत्रालय में. वो भी नहीं भी आएगा तो भी जो सेक्टर 70% के करीब चले गए हैं उन्होंने कंसोर्शियम जो है कंसोलिडेशन ऑफिसर कहलाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चकबंदी ऑफिसर. यानी जैसे गांव में चकबंदी होती है रेजिडेंशियल के लिए, ऐसे ही उसकी सहमति से सारा काम होगा. जो डीई कहेगी, एक कमेटी है भाई कहाँ कैसा नक्शा बनेगा, जैसे लाइक दैट चंडीगढ़ का है, सभी रोड पर आ जाएंगे, उसको कैसे हमने हायर करना है आर्किटेक्चर को, और कितनी कहाँ पर इक्विटी कर रखनी है, और उसके अंदर कंटिन्यूसली जो लैंड है उसको उसने कैसे एक्वायर करना है, किस रेट में करना है, सभी जो मामला है वो डीजी ने अपने पास ना रख करके कंसोर्शियम के ऊपर रख दिया है. कंसोर्शियम में सारा काम करना है. पहले 2013 की स्कीम थी वो इससे आसान थी, उसमें कंसोर्शियम नहीं था. उसमें सीधा आपने जो है 5 एकड़ जमीन ली और 20 एकड़ जमीन एक्ट जमीन ली, जैसे जो गुड़गांव पॉलिसी है वो था. अभी 2018 में जो इन्होंने चेंज किया वहां पर वो स्कीम हटा करके कंसोर्शियम शब्द ले आ दिया है. यानी डीडीए पिक्चर में नहीं आना चाहती किसी काम के लिए. सब काम आप लोगों ने करना है, कंसोर्शियम से मिलकर करना है. कंसोर्शियम वही आदमी बनेगा जिसकी जमीन वहां पर है. आप भी बन सकते हैं, मैं भी नहीं बन सकता. मेरा सेक्टर 40 है, उसमें एमआर कंपनी है सबसे ज्यादा. एमआर कंपनी ने हमारा जो है 100% एकड़ जमीन है उनकी, तो खुद लगे हुए हैं. और ये सेक्टर साउथ में रखे हुए हैं, साउथ वेस्ट में, यानी साउथ दिल्ली में प्राइम लोकेशन है. जहां हमारा जैसे ही सेक्टर खुलेगा तो जमीन के रेट भी बढ़ते हैं, तो जमींदारों का जिसने लेना अभी एक टाइम है, उसके बाद रेट बढ़ते रहेंगे. दैट इज अनदर इशू. हमें सिर्फ ये है कि लैंड पॉलिसी ये जो मेथड अपनाया है दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए ने, वो एक मगरपट्टा विलेज था जी पूना में, सतीश मगरपट्टा आया था, और गवर्नमेंट अब लैंड एक्वायर नहीं करेगी, इसी तरह की सभी स्टेट में पॉलिसी ले आ रही है. दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ पर अपनी कई एक्ट है, एमसीडी अलग है, एनडीएमसी अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है. तो लैंड मैटर इज अंडर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट. डायरेक्ट टू ऑनरेबल माननीय हमारे जो उपराज्यपाल के अधीन है, वो 6 महीने के लिए जो भी काम उनके निर्देश के अनुसार होगा जैसे होगा. और इन्होंने सेक्टर प्लान भी बना दिया है एल जोन की,
और जो भी चल रहा है काम जोरों पे लगाया हुआ है. यू कैन रेज एनी अदर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई टू यू विद एविडेंस. मैम ठीक है, थैंक यू यादव जी. ये जो क्वेश्चन होगा आप लोग या बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. इन द मेन टाइम नीरज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकेशन का क्या फ्यूचर है आफ्टर 5-10 ईयर्स. व्हाट इज द व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जो करंट लोकेशन है वो द्वारका सेक्टर 23 से 5 to 10 मिनट्स की ड्राइविंग पे जो छावला लोकेशन सेक्टर 14 जो है, सेक्टर 14 आपका द्वारका से सबसे नियरेस्ट सेक्टर है. पहला सेक्टर है जो कि UER2 का जो डिस्टेंस है दैट इज 79.2 किलोमीटर्स व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम NH8 टू बदरपुर बॉर्डर पे कनेक्ट करता है, जो कि सेक्टर 14 को टच करता हुआ निकलता है. एक वहां से जो लैंड है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से अगर आप देखेंगे तो इट्स 5 to 10 मिनट्स ड्राइविंग. इंडियन कन्वेंशन सेंटर बनाए जो ये आपके नेक्स्ट ईयर में इसका काम स्टार्ट, ऑलरेडी वर्क इज इन प्रोग्रेस, अगले साल इसकी डिलीवरी है, उद्घाटन हो जाएगा इसका. प्लस नियरेस्ट कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे. द्वारका एक्सप्रेसवे भी जो है वो आपका UER2 से कनेक्टेड है. तो और मेट्रो भी ऑलरेडी कन्वेंशन सेक्टर तक आ चुकी है, और जितने भी एल जोन के अंदर सेक्टर्स हैं सब में मेट्रो कॉरिडोर जाएगा. ये प्रपोज मेट्रो है. और अगर आप नियरेस्ट मेट्रो इसका देखेंगे तो आप द्वारका सेक्टर 25 और सेकेंड नियरेस्ट मेट्रो इज नजफगढ़, वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. Okay, so do we have any question to this group? I mean, Neeraj and so that we can further. Yes, Shaheen. नीरज जी, क्वेश्चन है कि आपने एक लिमिटेशन बताया कि जो भी लैंड खरीदना है वो एक ही सेक्टर में होना चाहिए, कंटिन्यूअस लैंड. ठीक है, कुछ एक लिमिटेशन समझ में आया. दूसरा और क्या लिमिटेशन है उस एरिया में? पहला क्वेश्चन अगर आपको मतलब पता है आज के डेट में, डेफिनेटली सी आज के डेट में लाइक नो वी आर टॉकिंग समथिंग 1000 feet above the land. ओके, आज के डेट में वो ग्लोबली हम बात कर रहे हैं. कल होकर के जब उसका फर्दर डिटेलिंग होगा, गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज को लाइक नो, एक होता है कि पॉलिसीज डिक्लेयर करना एंड देन जब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो निटी ग्रिटी जो है छोटी छोटी चीजें आएंगी विच विल बी हर्डल, तो एक लिमिटेशन हो जाएगा. वो होगा, वो हमको पता नहीं. लेकिन आज के डेट में अगर आपको उसके अलावा कोई लिमिटेशन पता है तो वो शेयर कर सकते हैं हम लोग से. जी. एक और क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ लेता हूँ सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो आस्क, है ना. तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहां पे आपने बताया कि कनेक्टिविटी समझ में आया कि ठीक है आज के डेट में कुछ कनेक्टिविटी है बट मेट्रो वगैरह नहीं है जो फ्यूचर में आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं. दूसरा ये कि वाटर सोर्स क्या है वहां पे, वाटर का कोई सोर्स है या जब गवर्नमेंट उसको डेवलप करेगी तो वाटर सोर्स को डेवलप करके. सर मैं बताऊं, पहले लैंड के ऊपर बात करते हैं. मिनिमम 5 एकड़ जमीन चाहिए होता है डीडीए में. पहले डीडीए खुद लैंड परचेज करती थी और उसको डेवलपमेंट भी खुद करती थी, बट मास्टर प्लान 2021 में ये चेंज हो गया था. 2007 में जब पहला नोटिफिकेशन आया था इन्होंने इसको चेंज कर दिया था. उसमें ये था कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है आप डीडीए में उस लैंड को सबमिशन करके डीडीए उसके बदले आपको 60% लैंड वापस करेगी, 40% लैंड अपने पास रखेगी. 40% लैंड में से पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड एरिया जो है वो आपका डीडीए डेवलप करेगी. उसके बदले आपको ईडीसी आईडीसी पे करने हैं पर एकड़. वो अभी डिसाइडेड नहीं है. इट मे बी 2 CR पर एकड़ है बट ये चेंज भी हो सकता है. अभी इसमें ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है. सेकेंड थिंग इज दैट कि सर 5 एकड़ में से 70% जो आपका लैंड है वो एक सेक्टर में होने चाहिए. 30% लैंड आपकी किसी और सेक्टर में भी हो तो वो एक सेक्टर ही माना जाए. और अभी जहां तक बात है सर, जो अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका था उसका आंसर मैं देता हूँ. सेक्टर प्लान इज ऑलरेडी डन. नीरज, जो आप कह रहे थे कि जैसे सेक्टर 15-14 है और मान लीजिए एक सेक्टर 16 है जी, तो आप ये कह रहे हो कि 70% आप सेक्टर 14 में हो और 30% सेक्टर 16 में है तो भी हमें सेक्टर 14 में ही जमीन मिलेगा. जी सेक्टर 14 ही मिलेगा जी. और जो एल जोन के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटीज के अंदर रोड्स है सर वो मिनिमम रोड इज 45 मीटर. उससे नीचे का कोई भी रोड नहीं. आपकी जो लैंड अलॉट होगी वो 45 मतलब कितना होगा उसमें फीट में?
फीट में कितना हो गया? 40 फिट में 45 में 140 फुट के आसपास हो जाएगा। 140 फुट। हाँ, मतलब उसमें 12 मीटर ग्रीन बेल्ट है, 6 मीटर का, और रोड है जी। चैलेंजेस कुछ नहीं है सर, चैलेंजेस ये है कि डीडीएफ फास्ट ट्रैक पे ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी जो डीडी जेजेवाई स्कीम था इनका, जिनके अंदर जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने थे, वो स्कीम 2024 इलेक्शन से पहले इनको काम स्टार्ट करना है ऑलरेडी। आप अगर आगे देखेंगे तो आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था एल जोन में। आज के डेट में सेक्टर प्लान, मैपिंग, यूआर 2 अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर सितंबर 2023 अभी गडकरी जी आए थे, द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले एक सोना रोड पे रोड का उद्घाटन किया है उन्होंने। उनकी स्टेटमेंट है 2023 में सितंबर में ये चालू हो जाएगा यूआर 2। और यूआर 2 जब से काम स्टार्ट हुआ है तब से लैंड्स के रेट जो है वो बढ़ने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं सर। तो इसी नीरज जी, मेरा नाम नंदन झा है जी नंदन जी, इसी संबंध में मेरा सवाल था कि आज के रेट में, चलिए लैंड रेट तो बढ़ता घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है, तो आज के रेट में लगभग मतलब क्या चल रहा है उस सेक्टर 14 उस एरिया में? सर सेक्टर 14 में अभी जो लैंड है 59.70% ऑलरेडी लैंड पूल हो चुका है। हाँ जी 59% और 70% हमें चाहिए होता है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपका 1 सेकंड हो जाएगा, ये सर 20 दिसंबर 2020 का डाटा दे रहा हूं मैं आपको। ओके जी। और मतलब रेट वगैरह क्या कुछ आइडिया है कि मतलब रेट वगैरह? सर ये रेट यहाँ पे 8 करोड़ रुपए से लेके और 12 करोड़ रुपए तक का जमीन का रेट है। आप अगर यूआर 2 के ऊपर लेंगे तो आपको 12 में भी जमीन मिल सकती है। अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक ही सेक्टर में लोगों को ये लग रहा है कि अगर हाईवे पे मेरी लैंड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, बट लैंड यूज सबके सेम है, चाहे वहां यूआर 2 से वो 1 किलोमीटर पीछे हो या 1 किलोमीटर आगे हो, सेम सेक्टर के अंदर जमीन आनी चाहिए। पर एकड़ के बोल रहे हैं ना? पर एकड़ 7.5 CR से लेके और 12 करोड़ रुपए एकड़ तक का रेट है। ओके जी। आप जैसे ही हाईवे के पास जाएंगे तो जमीन के रेट बढ़ जाएंगे, हाईवे से थोड़ा दूर जाएंगे तो सस्ता मिलेगा। द सेक्टर 14 इज ऑन हाईवे बेसिकली, यूआर 2 जो है, इसलिए कह रहे हैं हाईवे। सर जो हमारी, मैंने आपको लैंड परचेज किया है, कर्नल साहब इज आल्सो अवेलेबल देयर। हिज लैंड इज इट्स अराउंड अबाउट 450 मीटर्स फ्रॉम यूआर 2। या ओके जी, लेकिन अभी वहां पे प्रपोज रास्ता नहीं है, एक्चुअली वो बीच में खेत है, बट वहां से क्योंकि वो लैंड आपकी पुलिंग में जानी है, तो जो लैंड आपको अभी मिलेगा वो लैंड ऐसा नहीं है कि वो लैंड आपको वहीं पे आपको मकान बनाना है। वहां से हो सकता है रोड निकल जाए, वहां से हो सकता है पब्लिक यूटिलिटीज की कोई चीज बन जाए, वो सेक्टर प्लान के अंदर डिसाइड। नीरज, एक सवाल आ रहा है व्हाट्सएप में, वो इसमें चैट में जी, कि ये फ्री होल्ड होगा या लीज होल्ड होगा? ये फ्री होल्ड होगा सर, कन्वेंस डीड मिलेगा आपको। इट्स नॉट अ लीज होल्ड सर, इट्स अ फ्री होल्ड। फ्री होल्ड, ओके जी। सोसाइटी के नाम पहले लैंड अलॉट होगी, आप आईडीसी पे करेंगे, सोसाइटी के नाम लैंड अलॉट होगी, सोसाइटी पहले कन्वेंस डीड कराएगी, कन्वेंस डीड होने के बाद फिर आप सेल डीड में IOC same only purchased the land in 21 sector. जी। Then MRE is 40 sector. और काफी सारे सोसाइटी है सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 98 एकड़ लैंड है यहाँ पे, and then DLF has also participated in L-zone policy. We have almost 18 acre land in sector 14, 20 acre land in sector 15 sir. और काफी सारे ग्रुप्स हैं, MR ग्रुप्स हैं, दुबई की कई सारी कंपनियां हैं। ऑलरेडी सर सेक्टर 14 की हम बात करें तो 70% लैंड ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 30% जो लैंड अभी बचे हुए हैं वो ऐसे लोगों के पास बचे हुए हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं, जिनको लैंड बेचने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मैं आपको डाटा शेयर कर सकता हूँ इसका, जो भी डाटा चाहिए। ठीक है जी। सो और कोई सवाल अगर है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन टू दिस? हाँ, शाइन एक मेंबर हैं जो कि मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं, उन्होंने सवाल भेजा है कि एल जोन के बारे में तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, क्या वो बिल्कुल क्लियर है, वहां पर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी और वो नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली जाएगा या कहीं अड़ंगा लगने के चांस हो सकते हैं? मैं बताता हूँ, सॉरी टू से, कुछ दिन पहले की बात है, मैं पिछले 12 साल से एल जोन में काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की भी लैंड काफी सारा पैचेज है मेरे पास एल जोन में। उसमें क्या हुआ था, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स, छोटे छोटे ब्रोकर्स टाइप के लोग मिलके उन्होंने कुछ सोसाइटीज बनाए थे, जैसे मल्टी स्टेट CHS बनाया था, वेलफेयर सोसाइटीज बनाया था, प्राइवेट बिल्डर्स। उन्होंने लैंड
पॉलिसी जब आई थी 2013 की बात है, 18 सितंबर 2013 को पहली सेकंड नोटिफिकेशन आया था। उस समय इन्होंने सोसाइटी बना के और तभी से फ्लैट बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसमें रिवांटा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी थी एक, और भी आपके कई सारे सोसाइटीज हैं। बट मतलब वो लैंड उस समय जो सिचुएशन था और आज की सिचुएशन में काफी फर्क है। 5 साल पहले वो उन्होंने 5 से 7 साल पहले, जबकि कुछ भी नहीं था, कोई भी पॉलिसी नहीं थी, सेक्टर प्लान नहीं था वहां पे, मैपिंग नहीं हुआ था, डीडीए ने कोई परमिशन नहीं दिए थे, डीडीए ने कोई लैंड सबमिशन का रिकॉर्ड नहीं था, डीडीए ने कोई परमिशन नहीं दिया था कि आप लैंड सबमिशन करो। हम जो अब काम कर रहे हैं, अब हम 80% तक काम हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी के पोर्टल अभी भी ओपन है। आप अपनी लैंड सबमिशन करोगे, उसके बदले डीडीए आपको एक लैंड में पार्टिसिपेट होने का एक सर्टिफिकेट भी देगा कि आप लैंड पुलिंग में पार्टिसिपेट आप कर रहे हो। सेकेंड थिंग, रोड्स वर्क आर ऑलरेडी डन। थर्ड थिंग मैम की जो सेक्टर प्लान्स हैं, पहले लैंड अर्बनाइज नहीं था, लैंड वाज एग्रीकल्चर, तो उसलिए प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि हम आपको 2 साल में मकान बना के दे देंगे, 3 साल में फ्लैट दे देंगे, 4 साल में दे देंगे, 5 साल में दे देंगे। हम पहले ही अभी मेंबर को कह के चल रहे हैं, चाहे मकान आपको 2 साल में मिल जाए, लेकिन 5 से 6 साल लगेगा, अभी एटलीस्ट 5 years लगेगा, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट। जब द्वारका बसने वाला था, जब द्वारका में अभी 248 सोसाइटीज है टोटल, तो द्वारका भी ऐसा ही था। और अब जो एलजोन है, द्वारका से भी अच्छी चीज होगी। तो हम अभी जिस पॉइंट पे जा रहे हैं मैम, यहाँ पे काफी कुछ डेवलप हो चुका है। एग्रीकल्चर लैंड जो था वो अर्बनाइज हो चुका है। मैं आपको सारे नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ। मैम, आपसे जो हमने बातें की है ना, अभी यादव बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि डीडी ऑलरेडी टेकन द पोजीशन ऑफ ग्रास ओवर लैंड, बोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द एरिया जी, इन सेक्टर 14 सब में उन्होंने बोर्ड लगा दिए। काम जो है नई स्कीम है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ अड़चनें भी आ रही है, हम लोग मिलते हैं कमिश्नर साहब से। अभी हमारे जो है थॉमस साहब आए हैं, तारिक थॉमस IAS, वो इसी पर्पज के लिए यहाँ था गोवा से, अब इसको किसी तरह से धरातल पर ले आए। दूसरी बात जो हमने आपसे बोला है, सब कागज हमारे पास है। इफ यू वांट एनी, जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं, वो पॉलिसी और जितने भी हमारे पास ये आए नोटिफिकेशन वगैरह, और एक्ट भी सीज हो गया, दिल्ली लैंड एक्ट सीज हो गया है, वो नोटिफिकेशन भी है। तो जो भी एविडेंस है सारा आपको मिल जाएगा, हम आपको भेज देंगे, या जिस दिन आपने चाहिए उसको बुला लीजिए, हम फाइल के साथ आ जाएंगे, आपको दे देंगे विदाउट कोई मतलब वो नहीं है कि जो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कोई बात, ऑन पेपर जो बोल रहा है वो बात नहीं है। सही सर, आज के डेट में जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं डीडीए के, जो भी हमने बात बोला, उसके सारे एविडेंसेस हमारे पास है। इफ यू वांट वी कैन शेयर। एक सिंपल क्वेश्चन, अभी आपने कहा ना कि जब लैंड डीडीओ को सबमिट करेंगे तो डीडीए एक सबमिशन सर्टिफिकेट देगा, राइट? जी। तो ये मालूम करना था कि सबमिशन के टाइम में डीडीए वेरीफाई करेगा कि मिस्टर XYZ और द सोसाइटी XYZ has got 70%, then only will accept the submission, else will not accept the submission. Because if in a particular zone, अगर आपका 70% लैंड नहीं है एंड डीडीए एक्सेप्ट कर लेता है, इस केस में बाद में डीडीए बोल सकता है कि भाई आपका लैंड तो 70% है नहीं, है ना? तो वो जो सोसाइटी में पैसा लगाया है, या बोलिए कि जो भी सोसाइटी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको तो फाइनली लैंड नहीं मिल पाएगा। मतलब कि मैं एक एक्सेप्शनल हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि उसका केस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं? हाँ, मैं रिप्लाई देता हूँ साहब। इसका ऐसा है कि जहां पर 70% होगा, कंसोर्शियम वहां जो है लेटर इशू करेगी, डीडीए वेरीफाई करा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नहीं, उनका ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास 5 एकड़ लैंड नहीं है तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो? कर सकते हो, वो बोल रहा था कि वो पता है किस बात देखिए। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट होने के बाद जिसकी एक एकड़ जमीन है या 1 बीघा जमीन है साहब, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो ऑथराइज भी कर सकता है किसी दूसरे को। यानी आपकी जो सोसाइटी है उसको, उसमें मैं भी अपनी जमीन आपको ऑथराइज कर सकता हूँ, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा, टाइटल भी उसी के नाम रहेगा, सोसाइटी का सोसाइटी के नाम, मेरा मेरे नाम। यानी कंसोर्शियम इसमें मैन पावर है, वो डेवलप करके देगा, तब वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जिसे हम FSI कहते हैं। इस तरह का इसमें प्रोविजन जो है रखा है। जो लैंड है सर, वो आप मिनिमम 1 बीघा भी सबमिशन कर सकते हैं, 2 बीघा भी कर सकते हैं, 1 एकड़ भी कर सकते हैं, 5 एकड़ भी कर सकते हैं। जमींदार बहुत कम है, 5 एकड़ तो किसी के 1-2 के पास। अब सर लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास 5 एकड़ जमीन नहीं हुआ, हमारे पास 1 एकड़ जमीन हुआ, उसके बाद मेंबर्स के पैसे नहीं आए, वी आर नॉट कैपेबल टू बाय मोर देन लैंड, तो आप उस लैंड को सबमिशन करने के बाद डीडीए आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी,
और सर्टिफिकेट इशू होने के बाद जब वहां पे 70% लैंड सबमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो डीडीए एक कंसोर्शियम बनाती है। उस कंसोर्शियम के अंदर आप उसके पार्ट होंगे और उसके बदले जो 4 एकड़ वाले जो होंगे छोटे छोटे फार्मर, उनको क्लब करके आपको एक एफएसआई दे दिया जाएगा कि आप इस पार्ट में आप यहाँ पे अपनी कॉलोनीज जो भी है वो डेवलप कर सकते हैं। उसका पार्ट होंगे, डेढ़ से 5 एकड़ मिनिमम चाहिए, तो 5 एकड़ के अंदर आप एक पार्ट होंगे ग्रुप हाउसिंग का। एफएसआई को एक्सप्लेन कर दो नीरज, एफएसआई को एक्सप्लेन कर दो। एफएसआई सर एफएसआई क्या होता है कि चेंज ऑफ लैंड यूज के बाद, जैसे अभी अर्बनाइज हो गया, अर्बनाइज होने के बाद आप जब इसको डीडीए में अभी फर्स्ट प्रोसेस की डीडीए में आप पार्टिसिपेशन करते हो लैंड पूलिंग पॉलिसी में, डीडीए आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ सर। पहले आपने लैंड परचेज किया, लैंड परचेज करने के बाद आपने सेल डीड कराया, सेल डीड करने के बाद चाहे आपके पास 1 एकड़ लैंड हो या 1 बीघा हो या 5 एकड़ हो, मिनिमम 5 एकड़ आपको लैंड रिक्वायरमेंट है लैंड पूलिंग पॉलिसी में इंडिविजुअल डी बनने के लिए, डेवलपमेंट एंटिटी बनने के लिए। उसके बाद सेकंड जो आपका प्रोसेस होगा वो आप डीडीए में लैंड सबमिशन करेंगे, डीडीए उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के लिए डीडीए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आपके लैंड के पेपर भेजेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पेपर को ओके करेगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओके करेगा। उसके बाद वो फाइल फिर जाती है लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट। लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट उस पर ये ओके करेगा कि इसमें कोई लैंड रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 4 नहीं है, सेक्शन 6 नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद एडीएम से ओके वापस डीडीए के पास आती है। फिर जब 70% आपका हो जाएगा तो डीडीए फिर देन नेक्स्ट आपको डी के लिए कंसोर्शियम के लिए इनवाइट करती है। कंसोर्शियम में जितने फार्मर्स जो लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट हुए हैं उनके सबके नाम डीडीए के वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे अभी 3 सेक्टर ओपन हो चुका है, वर्क हैज बीन स्टार्टेड, P1, P2 एंड P3 जोन में। सेक्टर 3 और सेक्टर 10 3 जोन जैसे हो चुके हैं। उसके बाद आप कंसोर्शियम के पार्ट बन के डीडीओ को सबमिशन करेंगे, फिर डीडीए वहां पे अपना डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करेंगे। जी ठीक। फ्लोर लिमिट क्या है? जब कंस्ट्रक्शन हो तो फ्लोर लिमिट क्या है? कितने फ्लोर? ग्राउंड प्लस 14 है सर। एफआईआर अभी 200 का है। ओके। पहले एफआईआर फ्लोर एरिया रेशियो 400 का था, अब जो फ्लोर एरिया रेशियो है वो 200 का है। अच्छा, इसमें मैं एक स्टॉप करूंगा सर। कंसोर्शियम के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है डीडीए, उसमें 32 क्लियरेंस चाहिए होता है। 32 क्लियरेंस में सर आपके इन्वायरमेंट एनओसी है, सीएलयू है, चेंज ऑफ लैंड यूज है, उसके ईडीसी आईडीसी आपको सबमिशन करने पड़ेंगे, जो भी पर स्क्वायर फीट ईडीसी आईडीसी आप जैसे ही करोगे तो लैंड यूज का चेंज हो जाता है। लैंड यूज चेंज होने के बाद वो एफएसआई में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन उसमें कर सकते हो। देन उसके बाद डीडीए आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि अब आप अपनी जमीन पे ये आपको एरिया अलॉट हो चुका है, आप यहाँ का काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको रेडा का लाइसेंस लेना होगा, जिसमें कि आपको 70% रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंसोर्शियम विल टेक ना। हाँ, कंसोर्शियम कंसोर्शियम रेरा यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नहीं लेने हैं, जो कंसोर्शियम है वो रेरा के लिए अप्लाई करेगी। वो ले नीरज जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि अभी लैंड का रेट्स का डिफरेंस है 7.5 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ तक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सड़क के पास है, कौन अंदर दूर की तरफ है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड खरीदा, वो आपने प्राइम वाला खरीद लिया, लेकिन अभी तो आपको डीडीए जब अलॉट करेगी तो वो कोई पता नहीं है कि कहाँ पर अलॉट करेगी। इज देयर अ प्रोविजन कि आपका जैसा लैंड था, जिस आई से क्वालिटी टाइप्स, मतलब जो ज्यादा पैसे का लैंड था या कम पैसे का लैंड था, तो उसके प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है या इट कुड बी एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन? कहीं भी हो सकता है। पूरे सेक्टर, जैसा सेक्टर 14 की मार्किंग है, वो मैं आपको सेक्टर 14 का मैप आपको शेयर कर दूंगा, उसी सेक्टर के अंदर आपको अलॉट होगा। लेकिन हाँ, irrespective of whatever your purchase price was, whether it was high price land, low price land, it could be anything that you could be allotted within that particular zone, is what my understanding is. Second question, जी, but 45 meters road पे आपको अलॉटमेंट होगी, ये पॉलिसी में है जी। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव आप अभी क्या खरीदते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सेक्टर में कहीं। ओके। एंड सेकेंडली, ये जो 5 एकड़ का जो ये अभी प्रपोजल है कि 5 एकड़ होगा तो हम इतने यूनिट्स बना रहे हैं, 110 यूनिट 5 एकड़ में, तो ये 5 एकड़ से ज्यादा फिर आप खरीद के दोगे, क्योंकि आपको तो 60% ही रिटर्न होगा। नहीं मैम, आपको 5 एकड़ पे बेसिकली एफआईआर मिलता है। जो आप 40% आप डीडीए को दे रहे हो ना, 40% के बदले आपकी हाइट बढ़ रही है। पहले जैसे ग्रुप जनरल ग्रुप हाउसिंग में G+4 बने हुए हैं, जैसे आप डीडीए के फ्लैट्स देखोगे तो G+4 आप बना सकते हो, बट इसमें आपकी हाइट हाई राइज हो रही है, बिल्डिंग हाई राइज G+14 तक आप जा सकते हो।
तो जो आपने 40% एरिया डीडीए को दिया, तो डीडीए उसके बदले आपको एफएसआई अलग से दे दिया, एफआईआर दे दिया कि आप अपनी बिल्डिंग की हाइट्स को बढ़ा सो वर्टिकल वो आपको प्रोविजन ज्यादा दे दी, तो वो 5 जी। एकड़ ट्रांसलेट्स इनटू दैट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से जी, आपको जी। वर्टिकल। थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू। जैसे नीरज साहब ने कहा जैसे सेक्टर 14 है, सेक्टर 40 है, इसमें क्या है कि जमीन जो है 70% के करीब ऑलरेडी पूल हो गई। सपोज आप इसमें परचेज करते हैं तो उसमें आपको ये है कि किसी फार्मर्स को कहने की जरूरत नहीं है कि आप पूल करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आईओसी वाला ने प्रेजेंटेशन बनवाया मंत्री जी को देने के लिए, तो वहां पर किसानों ने कब कंसेंट दी है? कंसेंट नहीं दिए इतनी, उनका सेक्टर 18 में 20 में, और सेक्टर 40 में जायमार है, सेक्टर 14 है, वहां पर किसानों ने तकरीबन 90% कंसेंट दे दी। जमीन बिक चुकी है, जमीन बिक चुकी है। वहां जैसे बड़ी कंपनी है 40 में, यहाँ पर ऑटोमेटिक फार्मर ने ऑलरेडी कंसेंट, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। कुछ सेक्टर ऐसे है ना, अब आईओसी वाले हमें कह रहे हैं आप अवेयरनेस करो, कोई वो तो आप लोगों का काम है, हमारे कहने से तो कोई करेगा नहीं। ये तो इंटरेस्ट खुद लेना पड़ेगा। जब डेवलपमेंट होगा तो ये 5-7 सेक्टर एल जोन में 14, 3 एंड 40 एंड 13, ये जल्दी इसमें डेवलपमेंट होगा। इसका जो है ना हमारे पास डाटा भी है। साइन जी, मैंने आपको एक डाटा शेयर किया है जिसमें सेक्टर 14 में 59.70% लैंड ऑलरेडी सबमिशन हो चुकी है। दैट इज विंडो 20 दिसंबर 2020 का है बेटा। इसके बाद अभी करंट डाटा में और भी बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो, आप शेयर कर सकते ऐसे 40 में वो 45 जाएगा, 80 हो गया। लेना एक और क्वेश्चन अभी जो इन्होंने शालिनी जी ने क्वेश्चन पूछा उसी पर जी। पता है, ये जो शालिनी साहब ने अभी क्वेश्चन पूछा उसी पे एक सवाल है। आपने कहा कि भाई लैंड आप कहीं से खरीदो लेकिन अलॉटमेंट होगा, है ना, वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, कहने का मतलब ये कि अभी मैंने रोड के साइड का सोच करके खरीदा जो कि 7 करोड़ का है या 8 करोड़ का है, और जब हमें मिलेगा तो रोड के ऐसे साइड में मिलेगा जहां पे उसका रेट डेफिनेटली जो रोड एडजेसेंट टू रोड जो होगा उसका रेट अलग हो जाएगा, और जो थोड़ा दूर होगा उसका रेट अलग होगा डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लाइक एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है करप्शन। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, वो अलॉटमेंट के टाइम में लाइक बड़े बड़े बिल्डर हैं, वो जा करके रोड के किनारे का अपना अलॉटमेंट करवा लेंगे, और जो वीकर है जो इसमें मैम सर ऐसा नहीं है। इसमें कंसोर्शियम उस सेक्टर का एक ही बनेगा, और जो आप कहेंगे डी जो कहेगी वो उस तरह से उसका नक्शा बनाएगा। ये नहीं कि एक आदमी मैन वही रोड पर है और एक पीछे चले जाए। उसका नक्शा जो आपका डी बनेगी उसके, जैसे चंडीगढ़ की तरह में मैं सभी आदमी एक ही मतलब प्राइम लोकेशन में आ जाए, और कहाँ हमने जो है कमर्शियल रखनी है और कहाँ में पीएसपी रखनी है। उसमें क्या है कि का काम है सारा। उसमें क्या है कि सर जिनके पास बड़ा पैच है, ठीक है, जिनके पास बड़ा पैच है उनको उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये किसी की मन मर्जी नहीं है सर कि डीडी में जाके किसी ने ऑफिसर को डीडी का कोई रोल नहीं है इसमें। मतलब इट्स बेसिकली आप आरडब्ल्यूएस बोल सकते हो, जैसे सोसाइटी में आरडब्ल्यू होता है, तो कंसोर्शियम मींस आरडब्ल्यू जस्ट लाइक से। ओके नीरज जी, ठीक है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मैंने एक अपार्टमेंट में एक घर खरीदा, और अब पार्किंग के लिए जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा कि मुझे अच्छा वाला पार्किंग चाहिए, आपको वहां पे पार्किंग चाहिए, उसको वहां पे पार्किंग चाहिए, तो डेफिनेटली बिल्डर को ना आप थोड़ा सा ज्यादा मस्का मारते या ज्यादा थोड़ा सा अच्छा पे करते, तो एक और जो आपके डिजायर का पार्किंग एरिया वो आपको मिल जाता। इज द सेम सिचुएशन गोइंग टू हैपन हियर आल्सो? नहीं सर, अब मैं क्लियर करता हूँ। जो हमारी वाली सोसाइटी का सिचुएशन है, इसमें आपका फ्लैट नंबर यूनिट्स अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें पार्क फेसिंग मिलेगा या पूल फेसिंग मिलेगा, ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये लॉटरी होगी। ये कंसोर्शियम जो है, जितने आपके मान लो 110 फ्लैट है 5 एकड़ में, अभी हम आपको ये भी डिसाइड नहीं करके दे सकते कि आपको फ्लैट नंबर 101 मिलेगा या 104 मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा। साइन जी, मैं आपको कंसोर्शियम फॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है ना डीडीए का, वो आपको शेयर कर दूंगा। आप एक बार उसको स्टडी करके और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है सर। पार्किंग के अलॉटमेंट्स कैसे होंगे, पॉलिसी यहाँ पे वो पॉलिसी भी भेज दो, उसमें सब कुछ क्लैरिटी क्लियर लिखा हुआ है कि पार्किंग के अलॉटमेंट कैसे होंगे, जो सोसाइटी कंसोर्शियम बनेगी उसके पार्टिसिपेट कौन कौन होंगे, सब कुछ क्लैरिफिकेशन क्लियर है सर, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है।
और ये सर मैंने परसेंटेज अभी आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे, आप हाँ, चाहें तो इसको- मैंने लोगों को शेयर भी कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, वो आप पब्लिकली भेज सकते हैं। हाँ, मैंने ये 20 दिसंबर 2020 का डाटा है, करंट डाटा मैं आपको मंडे या ट्यूसडे तक दे दूँ। एक्सक्यूज मी, ये वाटर सप्लाई के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको जरा क्लैरिफाई कीजिएगा सर। वाटर सप्लाई में मैम वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनेगा हर सेक्टर के अंदर। जैसे एल जोन के अंदर टोटल 41 सेक्टर है, और पूरी दिल्ली के अंदर जो आपके मास्टर प्लान 2014 के अंदर आ रहे हैं, 2041 के अंदर आ रहे हैं, उसमें 109 सेक्टर्स हैं। एल जोन के अंदर टोटल 41 सेक्टर्स में से उसके हर सेक्टर्स के साथ ग्रीन बेल्ट एरिया छोड़ेगा। ठीक है, ग्रीन बेल्ट एरिया जो है वो 40% के आसपास है आज की डेट में, तो उसमें हर सेक्टर्स में WTP बनेगा, दैट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लान। तो पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की भी पॉलिसी है, इसमें सीवरेज की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे गुड़गांव देखते हो, द्वारका एक्सप्रेस पे आप देख सकते हैं, वहां पे इस चीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट DDA की पॉलिसी में क्लियर है कि इसमें हर सेक्टर्स के अंदर 5 एकड़ की जो सोसाइटी होगी उसमें WTP प्लान और एक मेन प्लांट होगा, और उससे ये कनेक्टेड होंगे WTP और STP सीवर ट्रीटमेंट प्लान। 10 लाख के करीब रोजगार है इसमें। ठीक, वो अलग सवाल है कि पानी जो आएगा वो जल बोर्ड से आएगा या वहाँ लोकली? जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करेगी, और ये अपना खुद भी प्लांट लगा रहे हैं सर। हर सेक्टर्स के एक मास्टर प्लांट होगा इसका, मास्टर प्लांट से फिर वो सेंट्रलाइज होते होते जितनी भी आपकी सोसाइटीज है, सोसाइटीज को खुद बनाना पड़ेगा WTP और STP। शाहीन साहब, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, अगर हम बुकिंग अमाउंट सारा पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 BH के लिए 70 लाख 50 लाख जितना भी है, हाँ, फाइनल पोजीशन कब तक आएगा इस फ्लैट का? इसमें कुछ टाइमलाइन है? इट विल टेक 5 to 6 years। 5 to 6 years इज फाइन। अगर 5 से 6 के बदले 8 भी हो जाता है देन इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर 6 के बदले 12 लगे तो नहीं, इतना नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि अब आप जब आओगे ना नेक्स्ट सैटरडे को, हाँ, आप खुद देखोगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं, है ना, अच्छा। आसपास की चीजें डेवलप हो रही हैं। जो चाहिए एक सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो चाहिए वो रोड होना चाहिए, सेक्टोरल प्लान, वो सारा ऑलरेडी तेजी से डेवलप हो रहा है। साइन जी, मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा इस क्वेश्चन पे। हाँ, हाँ, अभी DDA की एक जो नोटिफिकेशन आई है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ पब्लिकली। उसमें क्या है कि कंसोर्शियम बनने के बाद 5+23 8 मंथ्स में आपको पोजीशन देना मैंडेटरी होगा। अगर आप इसमें पोजीशन डिले करते हैं तो आपको पेनल्टी है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कंसोर्शियम बनने के बाद जब DDA काम स्टार्ट करेगी, उसके बाद आपको 28 मंथ्स के अंदर आपको डिलीवरी देनी है, पोजीशन देने हैं लोगों को। ओके, अगर आप पोजीशन नहीं देते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज है। मैं आपको लेटर शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। मंजूर साहब, एक सवाल जो मुझे बड़ा सिंपल समझ में आता है कि नया जोन जब भी डेवलप होता है तो मोर और लेस, अगर आपने कभी द्वारका को फॉलो किया हो, द्वारका आया था सम टाइम इन 1990 या, तो उसको डेवलप होते होते टाइम लगा। तो हो सकता है कि फ्लैट कंस्ट्रक्शन बन जाए बट डेवलपमेंट में टाइम लगे। अब जब द्वारका डेवलप हुआ था या बना था तो उस टाइम में ना तो गवर्नमेंट में उतनी ट्रांसपेरेंसी थी जितना आज है। तो हो सकता है कि आज जो काम होगा वो बेटर मैनेजमेंट में हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि वो 6 साल मिनिमम लगेगा, उससे ज्यादा हो सकता है। तो लॉक इन पीरियड वो सब मान करके चले, और वो सब जो है ना कुशन रख करके चले कि हाँ भाई 6 साल बोला जा रहा है, क्योंकि मेनी थिंग्स विल नॉट बी इन द गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया, फिर वो हमारे एरिया में कितना फास्ट है, जब तक गवर्नमेंट के पॉकेट में है वी कांट डू एनीथिंग। I think that much understanding all of us should have. That's what I think. ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो अभी जो पूछ रहे थे, जो मंजूर साहब ने अभी जो सवाल किया था, एक क्वेश्चन और था, मतलब बल्कि ये क्वेश्चन 3-4 लोगों का आया था। शाहीन सर, हाँ सर एक बार जवाब देना चाहते हैं पोजीशन वाला पॉइंट। सर, अभी जो है ड्राफ्ट नोटिस के वो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी जो हमारे जोशी साहब है उनके पास फाइल रखी है, और उसमें मैंडेटरी कर रहे हैं इसको, कंसोर्शियम इसको लैंड पूलिंग को। जहाँ 70% हो गया वहां पर पहले मैंडेटरी है, वहां कर रहे हैं, उसमें कुछ लैक्स भी कर रहे हैं। तीसरा, जो कंटिन्यूस लैंड है उसका कॉलम को भी हटा रहे हैं। जहां मैं हम मिले थे तब ये डिस्कस हुआ, और अभी इस पार्लियामेंट में जाना था, पता नहीं रीजन क्या है, फाइल क्यों नहीं गई। ड्राफ्ट उन्होंने भेज रखा है वहां पर
हमें नीट ड्राफ्ट भेज रखा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में अमेंडमेंट करने के लिए। जैसे वो एक्ट आएगा तो एकदम जो है ये 5-6 की बजाय मुझे लगता है 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, काम एकदम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिन किसानों को अभी नोटिस मिले हैं कंसोर्शियम बढ़ाने के लिए, वो इसीलिए रुका हुआ है ताकि उसमें कंटिन्यूस वर्ड लिखा हुआ है। जो लोग रह गए उनसे रिक्वेस्ट करें आपने पूर्ण कर दीजिए। जैसे वहां 100% हो जाएगी तो वहां तो हो जाएगा, और जहां 10% या 2% भी रहेगी किसानों ने नहीं की तो वह काम रुका रहेगा, तब तक वो एक्ट नहीं आएगा था। इसलिए एक्ट ये जरूरी ला रहे हैं, उसमें संशोधन कर दिया है उन्होंने ताकि ये और सरल हो जाए धरातल पर जाने के लिए। ये अभी जो है ड्राफ्ट उनके पास रखा है, बिल जाएगा उसके बाद हो सकता है ऑर्डिनेंस ले आए। अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वहां रखा हुआ है। आप मिले थे ये लोग आयुषी वाले, उसमें कुछ रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट भी थे आयुष वगैरह में। थैंक यू सर। ओके, सो एक जो अभी डॉक्टर मंजूर का जो सवाल था कि हम टोटल अमाउंट पे कर देते तो कब अलॉट होगा, सिमिलर क्वेश्चन जो है 3 और लोगों का था। एक मेंबर जो है हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और एक जो है दिल्ली से ही है, और एक और है बिहार से। इन लोगों का ये सवाल था कि इज देयर एनी बेनिफिट इफ वी पे लैंड टोटल लैंड कॉस्ट इन 1 मंथ। जैसे अभी हमारा क्या है 6 महीने टाइम दिया हम लोगों ने, तो ऐसा अभी कोई पॉलिसी हमारा नहीं है, लेकिन हमने आपस में डिस्कस किया गवर्निंग बॉडी में, और वी आर थिंकिंग टू गिव समथिंग अबाउट 3% बेनिफिट ऑफ लैंड कॉस्ट। लेकिन अभी ये हमने गवर्निंग बॉडी ने इसको पास नहीं किया है, वी हैव डिस्कस्ड इट। तो अगर ये पास होता है तो जो लोग टोटल लैंड कॉस्ट दे रहे हैं बुकिंग अमाउंट के 1 महीने के अंदर, दे विल गेट अबाउट 3% ऑफ द लैंड कॉस्ट लेस। ये गवर्निंग बॉडी ने डिस्कस किया, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं है, बट देयर वाज नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। तो चूंकि ये मीटिंग जो है जूम से हुआ था, वी प्लान टू हैव अ फेस टू फेस मीटिंग। तो एक ये था, ये सवाल का है, तो क्योंकि डॉक्टर मंजूर शाहीन साहब, this will be a good thing because in order to move the things quickly, if you are giving certain incentives to those who want to pay quickly, then the project can move forward. Right. This is one of the incentives. Yes. Yes, okay, thank you. सही सर, एवरेज रेट अभी द्वारका के अंदर आप जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी तो 12 से लेकर 15,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। द्वारका में भी 15,000 से नीचे कोई कुछ नहीं मिलता। तो देर आया दुरुस्त है, बस वही वाली बात है, वेट एंड वॉच। ठीक है, थैंक यू। कैन वी चेंज द चॉइस ऑफ द फ्लैट, ये कई लोगों का क्वेश्चन था। तो यस, अगर अवेलेबल फ्लैट है तो वी कैन चेंज। जैसे 5 BHK में ओनली अब 2 फ्लैट्स बच गया है, 10 थे, वो 9 थे, 9 में से ऑलमोस्ट जो है 7 बुक हो गया है, 2 और बचा है। तो अगर अवेलेबल है तो यू कैन चेंज। बाकी क्वेश्चन तो हो गया, एड्रेस हो गया है। अगर आप मेरे जो डू यू वांट मी टू गो थ्रू द PPT? अगर Yes sir, because many members were not present in the last meeting. वो अभी ये हमने शेयर भी किया है फेसबुक के जो ग्रुप हमारा है, उसमें आज हमने डाल दिया इसको रिवाइज करके, है ना। बट वी विल क्विकली गो थ्रू। मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जो ऑलरेडी जो विच नीड एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज जस्ट पास ऑन। ये जो है जैसे अभी नीरज बता रहे थे कि 40% एरिया जो है ग्रीन छोड़ा गया है। तो ये जो आप देख रहे, ये पीला पीला जो है दिस इज द लैंड, और जो हरा वाला है ये दिस इज ग्रीन। तो ए जोन में जितना ग्रीन है ये आपका, यहाँ फार्म हाउसेस बनेंगे सर, है फार्म हाउसेस बनेंगे सर। हाँ, और तो हमारा जो है ये द्वारका K2 देख रहे हैं, उसी बगल में छावला, ये आप दिख रहा होगा, ये छावला है, ये K2 के बगल में जो है ना जहाँ लिखा हुआ है, ये छावला है K2 के जस्ट नीचे। शाहीन, ये L जोन 15 सेक्टर लिखा है, हम 14 की बात कर रहे हैं 15 की? नहीं, हम चेंज कर देंगे, सॉरी, हम 14 की बात कर रहे हैं, सॉरी। ये वो क्या बोलते हैं, टाइपिंग एरर है, माय मिस्टेक, थैंक यू, आई विल एडिट इट। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो ये सेक्टर 14 है ये, और ये जो ये मैप जो है DDA का है, ये DDA मास्टर प्लान निकाला गया है ये। तो इसमें देखेंगे कि टोटल लैंड जो है DDA में है 21, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, तो 21 हेक्टेयर टोटल है ये एल जोन में।
जिसमें से 10 हेक्टेयर जो है आपको पूरा ग्रीन छोड़ना है। 21,930। हाँ 21,000, हाँ अब मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, मैं 21,000 हेक्टेयर है, इंक्लूडिंग इसमें गवर्नमेंट लैंड भी इंक्लूड है सर। हाँ वो ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग एक ब्रॉड आइडिया। टोटल एल जोन में 21,000 है, जिसमें 10,000 ग्रीन है और 11,000 अर्बनाइज्ड है, जिसमें घर बनेंगे, रेसिडेंशियल बनेंगे, विच आर एंड ऑल द ग्रीन आर ग्रीन जोन एंड आवर विलेज इज छावला विच इज वेस्ट दिल्ली। ये जो है जो छावला, ये जो आई हैव, यू कैन सी 3 रेड सर्किल्स ऑन दिस मैप। The one red circle is Mahipalpur. This is Mahipalpur. Second red circle is this is a airport, Indira Gandhi International Airport है। And third is Chawla project area, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है ये। और ये जो ब्लू रंग का जो रोड है, this is UER 2, अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। हाँ, और इसको जो है आप लोकल लैंग्वेज में रिंग रोड बोल सकते हैं। 2 रिंग रोड है, दिस इज 3rd रिंग रोड, जो आपको छतरपुर होते हुए महरौली होते हुए आपको बदरपुर तक जाएगी, ये बसंत कुंज होते हुए। सर ये रोहिणी को द्वारका से कनेक्ट करता हुआ और बदरपुर तक जाती है। हाँ वो ठीक है। तो ये तो हमारा लैंड यहाँ पे है। इस प्रोजेक्ट से जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, and the other thing Shine bhai which I want to say, this 3rd ring road is very important, क्योंकि ये आपका रोहिणी से नरेला कनेक्ट करके जो हाईवे है, जो चंडीगढ़ वाला जाने वाला हाईवे का साथ ही कनेक्ट करता है। ये आपका वो चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है जो ऊपर सोनेपत, वहाँ वो तरफ के हरियाणा से लेके गुड़गांव या फरीदाबाद का हाईवे, ये मान के चलिए ये सारा दिल्ली का बॉर्डर एरिया जो है ये कनेक्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड, आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगा। और ये रोड जो है 100 मीटर वाइड है, मतलब 328 फीट वाइड, 328 फीट वाइड है एंड 4 लेन है ये, तो बहुत ही चौड़ा है ये। एंड द इम्पोर्टेंट आई हैव लिस्टेड हियर, all important area except Palam Vihar are within 5 to 6 kilometer. A diplomatic enclave, golf course. Golf course is the Asia's largest golf course बनना है यहाँ पे। साइंस सर, सेक्टर 23 and diplomatic enclave is not 4.5 kilometer. It's 2.5 kilometers maximum. 2.5 किलोमीटर जी, 2.5 किलोमीटर। ओके ठीक है। ये हमारे लोकेशन से हम बताएंगे अबाउट लोकेशन। हाँ, आपकी मतलब जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव से आपने सेक्टर 14 लिखा है ना, हाँ ये 2.5 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब जो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑल द इम्पोर्टेंट स्पेसेस आर देयर। डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, महिपालपुर एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसके जस्ट बराबर में एक कमर्शियल मॉल भी आ रहा है काफी बड़ा। ये जो दिस ऑलरेडी उन्होंने शेयर कर दिया है तो नीरज ने और मिस्टर यादव ने, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस थिंग, FAR 4060 एंड ऑल दोस थिंग, सो आई जस्ट मूव ऑन। ये जो है हमें जो DDA will give 3 kind of FAR. One residential, जो in 5 acre you will get 1,58,000 square feet. FAR will get residential. Commercial you will get 31,000, and for public utility you will get 14,000 in 5 acre. So all the cost we are bearing have been included in this residential one. तो जो आप पैसा जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें कमर्शियल भी इंक्लूडेड है एंड रेजिडेंशियल भी इंक्लूडेड है। So you are also paying for commercial and you are not asking separately. So the amount you have paid that includes all these thing. The flat costs and sizes. We have discussed this many times. I think I should escape it. 2 BHK, 3 BHK, 100 is all we have discussed several times. So I'm just skipping. I'm just explaining those were very important because these have been
discussed on WhatsApp group, Facebook group several times. So just if you want, I can explain. But if anybody want me to explain, just let me know. Just one question, sir. Yeah. You have written 1100 square feet, 1400 square feet. So these are what, super area? Super area. Okay. So and how much of deduction will be there for the carpet area of this property? This is 25%. Okay. That is why we have bigger space. 11th. Otherwise, if you see 2 BHK 900 square feet में होता है. Right. ठीक है. So we have bigger so that after the loading you have around 900 square feet. सर एज पर रेरा आप 30% से ज्यादा लोडिंग नहीं ले सकते. हाँ तो हम तो 25% कर रहे हैं ना हम तो. हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है. फाइन भाई, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. अभी 5 BHK फ्लैट के बारे में चर्चा आपने थोड़ी देर पहले किया कि 10 के आसपास है और उसमें 7 लोग इंटरेस्टेड हैं. 9 लोग हैं. हमें भी मतलब पूरे सारे लोगों को जो आ रहा है फीडबैक, ज्यादा लोग 5 BHK में इंटरेस्टेड हैं. तो मेरे ख्याल से 5 BHK का जो फ्लैट है वो बढ़ा दिया जाए, 2 और 3 और 4 को कम किया जाए तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा. We can do it. हाँ, वैसे बाकी लोग भी let the requirements come. Right now this is the status. ये मेरे सामने स्क्रीन पे है. Right now this is the status. 5 BHK में 9 है, 4 BHK 18 है, 3 BHK 35 है, 2 BHK 50. तो we can reduce 2 BHK to 35 also. 2 BHK का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है. नहीं सर, अच्छा खासा आया है. जो बुकिंग आप अमाउंट 2 BHK का भी अच्छा आया है. साइन सर, मैं एक इंटरप्ट करूंगा आपको. बताइए. जो 60% लैंड आपको डीडीए से वापस मिलेगी ना सोसाइटी के नाम, उसमें आप अपना नक्शा खुद कैसे भी कोई भी डिजाइन आप जो आपकी सहमति हो उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं. हाँ. उसमें डीडीए का कोई इंटरप्ट नहीं है. Yes. So these are the number of flats we have. In current scenario, we have 112 flats. हम लोग 110 बोल रहे थे, एक्चुअली इट्स 112. और नंबर ऑफ टावर्स वगैरह का अभी हो गया या बाद में? ये तो बाद में होगा ना. ये तो जब we will decide. Okay. We will plan. मतलब once how high rise would the building be? कितना फ्लोर? ये सब बात की बात है. All we will decide. If you want to leave more space for green, or you want to leave less space for green. If you can go, they will allow FAR. उस FAR को ऊपर वर्टिकल यूज करें और हॉरिजॉन्टल यूज करें. अच्छा, ठीक है, बात का डिसीजन है. This is the FAR 1,58,000. So you want to use vertically या horizontally, that will be with the क्या बोलते हैं उसको, decision. It is the discretion of the society. Discretion of the society. Right. So ये है एक 112. And ये payment schedule we have already discussed. All of you have received the mail also. So these are things. So the booking cost includes your land cost. तो बुकिंग कॉस्ट जो है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी है वो माइनस करके ये टेबल बनाया है. यू सी बैलेंस अमाउंट, लैंड कॉस्ट माइनस बुकिंग अमाउंट. तो जो भी होगा उसका रेस्ट 3 इंस्टॉलमेंट है. एंड दोज हु आर पेइंग विद इन 1 मंथ ऑल द इंस्टॉलमेंट, वी आर प्लानिंग फॉर अबाउट 3% ऑफ द टोटल लैंड कॉस्ट, which we will inform once a governing body sign the paper resolution जो होता है हमारा. So ये हमने कहा कि 5+1 6 years we will take minimum. ठीक है. हाँ, ये रॉयल्टी पॉइंट्स हैं कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, जैसे महफूज है उसमें से वन ऑफ द, जो लोग 2015 से हैं, 2015 या 2016 में ही पे किया है. तो हमें दिसंबर, आप देखे होंगे दिसंबर 31, 2016, इससे पहले जो लोगों ने मेंबर फीस पे किया, ऐसे लोग 65 थे, जिसमें से 2 लोगों ने विड्रॉ कर लिया है. तो 63 लोग हैं जिन्होंने 2016 से पहले मेंबर फीस पे किया है 21,000 रुपीज. तो उन लोगों के लिए 3% ऑफ द टोटल कॉस्ट, नॉट लैंड कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड वो रिटर्न होगा एज ए साइन ऑफ अप्रिसिएशन, बोनस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की दे हैव ट्रस्ट, दे हैव फेथ, दे बहुत क्वेश्चन किया लोगों ने, है ना। देन लॉयल्टी बेनिफिट, राइट? रॉयल्टी पॉइंट, हाँ, बोनस Wow, this is good. दिस इज गुड। और हमारे में से हमारा जो 8 लोग ऐसे हैं, 8 लोग जिन्होंने 2016 से पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे किया हुआ है। दे हैड दैट मच फेथ इन अस। तो उनके लिए जो हमने क्या किया, 6% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट, नॉट लैंड, नॉट द कंस्ट्रक्शन, पूरा फ्लैट का, और जो भी ले 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो भी लेंगे, टोटल कॉस्ट का 6% विल बी लेस फॉर देम। साईं जी 10 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ। आप लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा है। ये उसके लिए जिन्होंने फॉर्म भर के मेंबरशिप पे किया है। अच्छा, दिस विल बी एडिशनल टू द रिटर्न बेनिफिट दैट एवरी मेंबर्स विल बी पेइंग। ये है ना जो आप लोग पता है ना, कमर्शियल को भेजने के बाद विल रिटर्न, तो वो उसके अलावा ये है। अच्छा, वो शायद हमने ये जो एडिशनल को मैं कह रहा हूँ ये है, ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला कमर्शियल में देख रहे हैं, कैन यू सी डबल वाइज मार्क, द वैल्यू ऑफ कमर्शियल फेयर विल बी रिटर्न, है ना। ये कमर्शियल वाला जो है आप देख रहे हैं, तो ये जो है उस वक्त जितना भी रेट होगा, आज के दौर में कमर्शियल का रेट उस द्वारका और उसके आसपास छावला में 10,000 पर स्क्वायर फीट है आज की डेट में। 10,000 में नहीं मिलता सर। हाँ, वो हम मिनिमम रखे हैं, नहीं मुझे पता नहीं मिलता है, लेकिन हमने मिनिमम रखा है, ज्यादा हो जाएगा तो और अच्छा है ना, तो हमने मिनिमम रखा सर है। ये आपने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, किसी भी सोसाइटी के पास ऐसा है नहीं आज के डेट में। हम भी कई सोसाइटियों के साथ हैं। तो ये जो है 10,000 आज की डेट में है, जैसे नीरज बोल रहे हैं कि 10,000 नहीं है, 15,000 तो रेसिडेंशियल वहां पे है, बट स्टिल वॉट एवर विल बी द, हमने लिख दिया एट दैट टाइम जो उस वक्त बिकेगा, तो उसका जो है हमने कैलकुलेट किया है दिस अमाउंट 1,732 रुपीज पर स्क्वायर फीट रिटर्न की एस्टिमेटेड रिटर्न बेनिफिट ये जो है कॉलम ए। Sorry, Sain, to interrupt you. Okay. See, if the return cost you are calculating at 1,732, and Neeraj ji is saying 15,000 or 10,000 whatsoever. Okay. So it's not only the return will be calculated with the current rate, but your investment will also be equally costly. What I mean by that, okay, that if today you are saying that construction cost will be 32 lakhs or 30 lakhs, let's suppose 50 BHK, okay. So that 30 lakhs is based on your own understanding. Today, the construction cost will be much more than, the land cost will be much more than, okay? I got your point. Land cost जो तो एज पर एक्चुअल है, ये जो 7.5 करोड़ जो नीरज बता रहे हैं, है ना, ये उसी के रेंज में हमने लैंड कॉस्ट उसी को कैलकुलेट की थी, एज पर एक्चुअल है ये एस्टिमेट नहीं है लैंड कॉस्ट, और इसीलिए बढ़ भी सकता है सर। बढ़ भी सकता है, इसीलिए आप देखोगे कि मैंने लिखा हुआ है कि ये जो कॉस्ट है ओनली फॉर 5 एकड़ के लिए, अभी जो 5 एकड़, अगला 5 एकड़ में ये बढ़ेगा। इट्स अ टेंटेटिव कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे लैंड कम होती जाएगी, डीडीए के प्रोग्रेस बढ़ते जाएंगे, जो 12 लोग जो बुक करेंगे दे विल बी इन बेनिफिट। तुम्हारे के बाद जो आएगा वो उसका लैंड कॉस्ट हो सकता है वो हमें 11 करोड़ में लेना पड़े, 12 करोड़ में लेना पड़े, सर्टेनली इट्स 7.5। एक एकड़ में आपका कितना स्क्वायर फीट होता है? एक एकड़ में जैसे आपका 53,460 स्क्वायर फीट होता है सर। तो हाँ, तो ये नोट करने की चीज है कि ये जो अभी रेट है 2,300 पर स्क्वायर फीट, ये फर्स्ट 112 के लिए है ये। इसके बाद दिस रेट मे गो टू 2,700 पर स्क्वायर फीट, डिपेंड ऑन द लैंड कॉस्ट। अभी जो लैंड कॉस्ट हम लोग नेगोशिएट किया है उसके हिसाब से है, दिस इज द एक्चुअल रेट, दिस नॉट एंटिसिपेटेड। हाँ, कंस्ट्रक्शन इज एंटिसिपेटेड, इसको हमने अंदाजा लगाया है
हमारे कुछ साथियों से मिलकर के, पहले हमारा हमने 21,000 रखा था, बाद में लोगों ने कहा कि नहीं इसको 25 कर लो। दिस इज, और इसमें जो है 10% का वो गैप मांग चलो, 10% एक्स्ट्रा का वो मांग चलो, ये था इसमें। वो हमें लिखना है कि 10% इसमें 10 to 15% में गो अप। तो हाँ, तो मैं तो ये जो है था ना ये वाला, दिस विल बी एडिशनल टू रिटर्न बेनिफिट, ये उसी से कह रहा है कि जो वहां मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा ये बेनिफिट है ये। जिन लोगों ने 2016 में से पहले हमारा मेंबरशिप फीस लिया है और लैंड कार्ड दिया है तो ये ऑलरेडी सबको पता है कि 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और 10 लोगों को 50% लैंड कॉस्ट फ्री है और 50% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्री है, जो कोर ग्रुप है 10 लोग। Wait, Sahil, has this been proposed to the wider audience, so, or is it taken during decision by लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने कहा था, फिर हमने लास्ट जो मीटिंग था, फिर उसके बेस्ड ऑन दैट वी हैड पीएमसी मीटिंग, पीएमसी ने इसको अप्रूव किया था। अच्छा। तो जो लोग भी कोर ग्रुप में, देयर आर 10 पीपल, तो उन 10 को वॉट एवर द फ्लैट साइज दे चूज, दे विल बी 50% रिबेट, and again this will be additional to the return benefit. Thank you. तो और कोई सवाल वगैरह है? Or you can send more question to the connect@jnualumni.in. Right. The land you are buying now, not necessarily the area finally will be allotted that same particular land. It can be anywhere in the L zone. Am I right? Not. Got it. So we are procuring in sector 14. So just a minute. In sector 14, we will be getting anywhere, not in L. Okay. Okay. So and that sector will be within 5 kilometers. You know, it's not a huge sector is not a very big chunk. It may be within 2 to 3 kilometer radius of one sector. Yep. Understood. Okay. So the sector may remain the same, but land definitely will not remain the same. Right. Okay. The spot will not be the same. Got it. Yeah. Okay. You know, the idea is behind this land pooling that the 40% of the whole sector 15 will be given to DDA. So in that 40%, they will have internal road, which is called sectoral road, about 100 meter, 50 meter sectoral road. So that is why they are pooling, so that and then they can plan for the rest of the land. Okay. So Shaheen, आज के date में, is there a clear demarcation of the sectors? Yes. You have that naksha. Right. We have. Okay. And I have shared also. I will again share. Earlier we have shared in the WhatsApp group and also in the Facebook group. But we can again share. शेयर आपने किया है, लेकिन क्या होता है ना कि उससे a person who is not on the spot or not close to day-to-day progress may not be able to understand. Or at least for me, it's like black and white. Okay, कुछ land है, green है, L zone कहलाता है. Within that L zone, if you tell me to demarcate which is the sector 4, sector 5, sector 3, at least from the photo whatever you have shared, it's not clear. Okay, or I may not have understood that also a possibility. Okay, we have a representative of landowner also. If you have any question, they can also answer. We have also, since we are focusing on one particular land parcel in sector 14, so I have requested the representative of that land. So we will also listen from them. If you have any question, all those things. Do we have any more question, or should I ask Sandhya ji to conclude? No question from my end. Shaheen ji, what about Saturday's visit? What about Saturday's visit? Saturday visit confirm? Okay.
आप एक उस पे ग्रुप पे डाल दीजिए, फेसबुक ग्रुप आप है ना? हाँ, यस। हाँ, उस ग्रुप में एक पोस्ट डाल दिए कि यू वांट टू विजिट ऑन कमिंग सैटरडे, ठीक है? Okay. उसमें क्या होगा कि और लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें विजिट करना है, हमें विजिट करना है। चलो, because we have booked the ticket for Saturday. यस यस, वी विल, यू आर वेलकम। Okay, thank you. जस्ट आप उसमें एक पोस्ट कर दीजिएगा, सो दैट अदर पीपल विल आल्सो नो दोज हु वांट टू विजिट। Okay, surely. ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Shaheen, hi, how are you? Sunil this side. हाय सुनील, हाउ आर यू? Pretty well, yeah, pretty well. I've been audience all through. Acha, one more thing, being in the group also, and I was not able to connect for the past meetings for some time. My only question is, I mean, the finance aspect regarding the land cost, has it been taken care? See, the booking amount is okay. The total land cost, is there any viability of getting it financed from somewhere? No. That is not there, no? No. And the time period that we have selected for this payment of this land cost is? 6 months. Okay then, Sandhya ji, over to you. ठीक है, अभी मतलब हम जैसा पिछले कई मीटिंग से देख रहे हैं, इस बार बहुत ज्यादा अटेंडेंस है और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। बस ये है हमारा ये प्लान जल्दी से जल्दी मटेरियलाइज हो जाए और हम हर बार सिर्फ यही बात नहीं करते रह जाएं कि अभी हमें और पैसा चाहिए और बुकिंग अमाउंट चाहिए, ईमेल भेजते रहे। मेरी सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं दिया है वो दे दे, और जो उनके कॉन्टेक्ट में फ्रेंड्स हैं जिनको वो परस्यू कर सकते हैं वो भी करें, क्योंकि हम जितनी जल्दी फंड इकट्ठा करेंगे उतनी जल्दी हमारे प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए, और ऐसे ही एक्टिव रहिए, अपने सजेशन देते रहिए, क्रिटिकल सजेशन देते रहिए। जितने हमारे मित्र आए हुए हैं, इस बार जैसा संध्या जी ने बताया, काफी इंटरेस्ट लेकर के उन्होंने सुना है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस भी, खासकर महफूज जी ने पहले की तरह कई क्वेश्चंस जिससे क्लैरिटी भी आई है, और उनके पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर रिपीट करते हैं कि सारा कुछ जो दारोमदार है हमारे फंड कलेक्शन पर निर्भर करता है, और जितनी जल्दी हम लोग फंड कलेक्ट करके जमा करेंगे उतना ही हम लोग को फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू नीरज, और मिस्टर यादव के लिए खास तौर से थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों ने शेयर किया। तो आप लैंड ऑनर इज आल्सो अवेलेबल कर्नल साहब। ओके, हाँ, यू कैन से थैंक यू आल्सो। ओके ओके, तो सैटरडे को मिलते हैं नीरज हम लोग। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आने से पहले कॉल कर दीजिए। हाँ, आई विल कॉल यू। 3 बजे का टाइम होगा, बस 4 बजे का शाम का। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।